So good morning students. Am I audible? And can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So let us start. See, in the last class we were discussing how to calculate this early start time. First we learned how to draw the network. Okay, following all the rules, you will be given a table. This is called the predecessor relationship. Okay, this chart or this table will be provided to you, and with the help of this relationship we can draw. Okay, and for drawing we should follow all the rules of the network diagram. Okay, so I think now you can draw. Okay, how to, now you know that how to draw a network, proper network diagram following all the rules with the help of this table, right? Then after that we discussed how to calculate earliest start time and how to calculate latest finish time. Okay, so we have completed till here. See, earliest start time, after drawing this network diagram, we know that every project network should have one tail event and one head event. Okay, and the activity which is starting from the tail event should have earliest start time as 0. That means whenever you are getting the project, you will begin to work in that project from the very beginning. That's why the starting time of, that's why the starting time, sorry, the starting time of all these first activities. Okay, these are called the independent activities. That means there is no predecessor for this activity, they are starting individually. Okay, and at the same time, so the starting time of all this activity will be the 0th day. That's why it is es1 is 0. Es1 means what? The activity which is starting from this event number 1. Okay, so what is the earliest possible time when this activity will be started? And this we know that for the first, from the first event, whatever the activities has been starting, they have es value as 0. Okay, तो इतना दूर तो शायद सबको पता है. Now how to calculate the successive es value? That means, sorry, so if we get this value, es value, okay, suppose this activity starting from 1 to 2, that is I is this number 1 and j for this activity a is number 3. So we are moving from I to j. Okay, and see the numbering, it is also following the Fulkerson rules. Your j value should be greater than I value, it is satisfying. Okay, so here we have calculated that in order to calculate the es value, what we must do, we must add the duration of this activity for which we are calculating this es1 and es3. Okay, so es3 is what? Es3 is the earliest start time of this activity. That means the, if a activity completes here, then whatever activities that will start from this event, that means these two activity will start when this activity will be completed. So when this activity is completed, it is completed on 0 plus second day. That is, here it will be the previous es value plus the duration of that activity. Okay, so this will be your 2. This we have known how to calculate. Okay, similarly, say for example, for b activity, it is starting from 1 to 2. Now the activity which will start from this event as early as possible,
is the ES2 value. Okay, and how to calculate this value? Can anyone tell me what is the value of ES2? 5. Yes, 0 plus 5. Okay, so like this we have calculated all the ES value. Okay, but in case of like this activity, see, for 4 there will be, you have to see how many arrowheads are attaching here. Okay, that means how many activity is completed in this event. This arrowhead means what? This activity is completing in this event. Okay, so how many activities are completing here in the fourth event? 2. One. Yes, 2. two. So there will be two value of ES and we have to take the maximum. In case of ES we have to take maximum. Okay, तो ये याद रखना कि फर्स्ट इवेंट का जो भी ES होगा दैट विल बी जीरो. इवेंट का नहीं, एक्चुअली द एक्टिविटीज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फर्स्ट इवेंट विल बी जीरो. ओके, एंड द एक्टिविटीज फ्रॉम विच, जैसे ये इवेंट से अगर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो उसका दो वैल्यू होगा बिकॉज टू एरो हेड्स आर जॉइनिंग हियर, मर्जिंग हियर, एंड वी हैव टू टेक द मैक्सिमम. तो ऐसे करते करते हम लोग 9th तक जाएंगे. एंड वी नो ES9 का मतलब क्या था? ES9 का मतलब था कि यहाँ से अनदर एक्टिविटी कितना टाइम में स्टार्ट होगा, एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, दैट इज द ES9 वैल्यू. एंड दिस मीन्स व्हाट? यहाँ से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा, मतलब यहाँ से अब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है. ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज द, ये वाला एक प्रोजेक्ट है, अब यहाँ से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो दूसरा प्रोजेक्ट एक्टिविटी होगा. ओके, सो वी कैन से दैट this project will start when this project, whole project will be completed. So ES can be also we can consider ES also as the project duration of which project? Of project number 1, and this is project number 2. This whole project is suppose project number 1. So ES9 is nothing but the project duration of the first project. Okay, since this is the project duration, we can also say that this project will be completed, मतलब ज्यादा से लेट कब कंप्लीट होता है? दैट विल बी योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ओनली. ओके, मतलब इसका अगर 7 डेज का असाइनमेंट दिया है तो तुम लेट से लेट 7 डेज में कंप्लीट करोगे. सिमिलरली इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर ES9 है तो ये लेट से लेट ES9 में ही कंप्लीट होगा. ओके, सो वी कैन से दैट फॉर कैलकुलेटिंग ES, फर्स्ट यहाँ पे 0 कंसिडर करके ऐड करते करते जाना है ड्यूरेशन को. एंड LF के लिए हम बैकवर्ड में जाएंगे, तो बैकवर्ड के लिए सबसे पहले इसका LF निकालो, फिर उसके पीछे वाला LF, वैसे करते करते जाएंगे बैकवर्ड मोशन में. ओके, सो लास्ट वाला LF इज व्हाट? लास्ट वाला ES. ओके, तो इतना दूर तक सबको क्लियर है. एंड से फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे इस वाले इवेंट में देर इज ओनली वन टेल हेड. ठीक है, एक ही टेल हेड है. अब LF का टाइम में टेल हेड देखो तो यहाँ पे एक ही LF का वैल्यू आएगा. ओके, वेरएज इन केस ऑफ 6 देयर आर 2 टेल हेड्स. ठीक है, तो इसका LF में 2 LF वैल्यू आएगा, LF6 का 2 वैल्यू आएगा. इन दैट केस वी हैव टू टेक द मिनिमम. ओके, LF के केस में हमको मिनिमम कंसिडर करना है. एंड हाउ वी विल कैलकुलेट LF? सिंपल, ये सामने वाला का LF माइनस ड्यूरेशन. जैसे इसमें क्या करते थे, पीछे वाला का ES प्लस ड्यूरेशन, सामने वाला का ES निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पीछे वाला का LF निकालने के लिए सामने वाला का LF माइनस ड्यूरेशन, उल्टा. ओके, एंड वी विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो so in this way we have calculated our ES value. okay, सब ES हम लोगों ने कैलकुलेट करते करते गए. now देखो, this ES, last ES is nothing but the project duration and your LF value will be the value of ES only for the last event. okay, तो देखो 28 निकला था तो यहाँ पे 28. अब हम बैक कैलकुलेशन करते करते जाएंगे. देखो 28 माइनस 8 20, एक ही वैल्यू है तो एक ही रहेगा. ठीक है, वैसे ही इसमें देखो, इसमें भी एक ही एरो का टेल अटैच है, सो एक ही वैल्यू आएगा विच इज 28 माइनस 12 इज 16. ओके, सो वी आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब देखो बैकवर्ड हम गए. नाउ अब क्या करना, सबका LF निकला है, सबका ES निकला है. दिस इज द अनदर टास्क दे विल आस्क यू टू परफॉर्म. ओके, नाउ
what we have to do, we have to estimate or we have to calculate कि determine which is the critical activity. For that we need to estimate S value. S is what? Slack. And what is the relationship? Slack कैसे निकलेगा? LF minus ES. yes, yes. LF minus ES. तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते करते जाएंगे. ओके देखो इसमें भी 0 है. ठीक है, जैसे ये S है यहाँ के लिए. ओके दिस S इज फॉर 2 के ऊपर जो रहेगा. ओके ES3 है तुम्हारा. देखो कितना है? S3 इज योर 6. तो करते करते हम लोग सब S का कैलकुलेट करते जाएंगे. ओके नाउ सी हियर, कहाँ कहाँ पे S का वैल्यू 0 है. वी हैव आइडेंटिफाइड दोज इवेंट. ठीक है, जैसे 1 में 0 था, 2 में 0 था, 0 0 0. ओके वी विल कंसिडर दैट एक्टिविटी एज क्रिटिकल एक्टिव ओनली जब कंसिडर होता है जब इसका एरो का पीछे और सामने दोनों जो इवेंट रहता है, मतलब स्टार्टिंग और फिनिशिंग जो भी इवेंट रहता है एक्टिविटी का, दोनों का अगर एस का वैल्यू 0 है देन ओनली वी कैन कंसिडर इट एज अ क्रिटिकल एक्टिविटी. तो यहाँ पे देखो ए क्या क्रिटिकल एक्टिविटी है? इज ए अ क्रिटिकल एक्टिविटी? ए का स्टार्टिंग इवेंट है 1, फिनिशिंग इवेंट है 3, 1 से 3 की तरफ जा रहा है. ओके तो एस वैल्यू है 0 1 में, बट एस 3 के ऊपर एस का वैल्यू है इट्स अ नॉन जीरो. ठीक है, तो कैन वी कंसिडर इट एज अ क्रिटिकल एक्टिविटी? नो मैम. नो राइट. तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है. अब इसमें भी देखो ई भी तुम्हारा क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है बिकॉज इसका 3 से 5 में जा रहा है. तो S3 है 6, S5 है 6, सो इट इज ऑल्सो नॉन क्रिटिकल. अब देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया ये वाला, दिस इज अ क्रिटिकल, बी इज क्रिटिकल. वाई? बिकॉज इसका एस देखो, इसका स्टार्टिंग इवेंट फिनिशिंग इवेंट दोनों में 0 0 है. सो वी कैन कंसिडर इट एज अ क्रिटिकल. वैसे सी भी क्रिटिकल है, डी भी क्रिटिकल है, जी भी क्रिटिकल है, एच भी है, के है, एन है, एल है. ओके सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज. अब देखो ये क्रिटिकल एक्टिविटी मिला के बहुत सारा पाथ क्रिएट होता है. पाथ मीन्स व्हाट? फ्रॉम स्टार्टिंग इवेंट या टेल इवेंट से लेकर हेड इवेंट तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो करेंगे उसमें अगर सबका सब एक्टिविटी क्रिटिकल है देन ओनली वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर पाथ इज अ क्रिटिकल पाथ. ओके एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो जैसे ये एक पाथ हुआ है. ओके इस पाथ में कौन कौन सा एक्टिविटी है? बी है, जी है और एल है. ओके तो देखो इन दिस पाथ 1 से 9 में हम जा रहे हैं. ठीक है, स्टार्टिंग से फिनिशिंग में जा रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से फिनिशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट तक जा रहे हैं. एंड इन दैट पार्ट दीज आर द एक्टिविटीज बी जी एल एंड ऑल दिस 3 एक्टिविटीज आर क्रिटिकल क्योंकि इन दोनों का देखो सब में एस इक्वल्स टू 0 आ रहा है. ठीक है, मतलब कि तुमको लेजीनेस मतलब क्या बोलते हैं टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. जब तुम्हारा एक एक्टिविटी खत्म होगा तुरंत दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट करना पड़ता है. ठीक है, इसलिए इट्स अ क्रिटिकल एक्टिविटी. अगर वहाँ पे थोड़ा भी डिले हो जाता है तो तुम्हारा होल प्रोजेक्ट विल बी डिलेड. ओके तो यहाँ पे हमको ज़्यादा कॉशियसली काम करना पड़ता है, ज़्यादा डिले ना हो ऐसा करना चाहिए, इसीलिए इसको क्रिटिकल बोलते हैं. ओके अब सिमिलरली देखो यहाँ पे और एक पाथ तुमको मिलेगा विच विल बी क्रिटिकल. वो भी जा रहा है देखो कहाँ से? 9 तक ही जा रहा है. कहाँ से जा रहा है? 1. ठीक है, फिर सी हो गया, जी हो गया. ठीक है, अब देखो ये वाला भी तो हो सकता है ना. सो दिस इज सेकेंड पाथ. ठीक है, ये भी जा रहा कहाँ से? 1 से होके 4 6 से होकर 9th में जा रहा है. अगेन इन दिस पाथ ऑल द एक्टिविटीज आर क्रिटिकल, मतलब सी भी क्रिटिकल है, एच भी क्रिटिकल, एल भी क्रिटिकल है. सो वी कैन कंसिडर दिस पाथ ऑल्सो एज अ क्रिटिकल पाथ. ठीक है, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा? और भी पाथ मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे और भी पाथ है, जैसे ये है. ठीक है, 1 to 2, 2 to 4. ठीक है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 9. राइट. तो देखो यहाँ पे बहुत सारा क्रिटिकल पाथ तुमको मिल रहा है, बट हमको कंसिडर करना है कि एक्चुअल में क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है. तो अगर एमसीक्यू आएगा कि क्रिटिकल पाथ इज दोज पाथ जिसका तुम्हारा ड्यूरेशन इज लॉन्गेस्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बोलो, तो कैन वी कंसिडर
हाँ, लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ मतलब है कि ड्यूरेशन के टाइम, ड्यूरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू वट एवर इवेंट, कुछ भी इवेंट से जाके होके तुम अगर नाइन्थ में जाते हो, ठीक है, तो वो टाइम कितना ले रहा है, व्हाट इज द टाइम, ठीक है, मतलब वन से लेकर नाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम। इफ द पाथ जो भी फॉलो करके हम जा रहे हैं वो अगर लॉन्गेस्ट हो रहा है तो दैट इज द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ को हम लॉन्गेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो अब यहाँ से चलते हैं कि क्या क्या क्रिटिकल पाथ हो सकता है। देखो ये क्या हुआ, एक पाथ हमने ड्रॉ कर दिया। देखो दिस इज द फर्स्ट पाथ। ओके, मतलब 1 to 2 पाथ 1 है, 1 to 2, 2 to 6, 6 to 9। ओके, तो बोलो ये ड्यूरेशन कितना लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या करना है हमको, उसमें जितना भी, एडिशन। yes, उसमें जितना भी एक्टिविटीज है, जैसे यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी है, BGL, सबका ड्यूरेशन ऐड कर दो। ड्यूरेशन कौन सा है, ये जो है, दे विल गिव यू इन ब्रैकेट या समवेयर नीचे भी लिखा रहता है कभी कभी। ओके, सो दैट इज द ड्यूरेशन। जैसे 5 days, 3 days, 3 days कितना लग रहा है, 5 + 3 8, 8 + 3 11 days। ओके, तो देखो 11 days लग रहा है। ये ग्रीन कलर का पाथ हमने किया है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द अनदर पाथ। देखो ये दूसरा पाथ हो रहा है, तो इसमें भी देखो सबका सब क्रिटिकल ही है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो हम बोल सकते हैं ये क्रिटिकल पाथ हो सकता है। ठीक है, तो पाथ तो कौन सा है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 9। नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन, 19। 19। कैसे किया, जो जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन ऐड कर दो, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19, तो 19 डेज। ठीक है, अब देखो और एक क्रिटिकल पाथ, अब इसका ड्यूरेशन कितना होगा, डी का 5 है। ओके, ये 5 वाला है, बोलो ऐड करके बोलो कितना हो रहा है, 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 8 28। 28। ठीक है, और एक क्रिटिकल पाथ देखो ये है पर्पल वाला, तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20। ठीक है, और भी पाथ है, बोलो और भी पाथ निकलेगा क्रिटिकल पाथ। 1 to 4, 4 to 6। और दो आएगा देखो, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 9। ठीक है, ना ड्यूरेशन कितना होगा, 1 to 4 है 4 days, फिर 4 to 6 है 6, सो 4 + 6 है 10, नाउ 10 + 4 14, 14 + 8 22। ठीक है, और पाथ है, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 9। यस, यही लास्ट पाथ है। ठीक है, तो 1 to 4, 4 to 6, 6 to 9, तो इसको ऐड कर देते, चलो 4 + 6 10, 10 + 3 13 डेज। ठीक है, अब देखो स्लैक मेथड से भी हमको क्रिटिकल पाथ नहीं मिल रहा है, एक ही क्रिटिकल पाथ होना चाहिए राइट, लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स मिल रहा है एज पर द स्लैक। ठीक है, सही है, सब पाथ क्रिटिकल है, क्योंकि उस क्रिटिकल पाथ में सब एक्टिविटी जो भी है ऑल आर क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, बट दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे हमको इतना सारा पाथ में 6 पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो अब तुमको एमसीक्यूज दिया जाएगा, तो तुम अगर देखो ES निकालोगे, LF निकालोगे, S निकालोगे, तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग, इट विल टेक टाइम। लास्ट में जाके तुमको फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि, क्योंकि यहाँ से तुमको 6 पाथ निकला है। अब 6 पाथ में से कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा, मतलब तुम कोई भी पकड़ सकते हो। अब 6 में से शायद किसी ने सिर्फ 3 आइडेंटिफाई किया, या सिर्फ बोला कि नहीं 5 ही पाथ है, बाकी का पाथ तुमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर में बी योर कैलकुलेशंस में गेट रॉन्ग, राइट, तुम्हारा आंसर में गेट रॉन्ग। सो हम स्लैक मेथड को अप्रोप्रिएट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस वी विल गो फॉर अदर मेथड्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अदर मेथड जैसे फ्लोट मेथड बोलते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसको भी तो सीखना जरूरी है ना। तो अब बोलो इसमें से कौन सा लग रहा है तुम्हारा क्रिटिकल पाथ होना चाहिए,
तो एमसीक्यू अगर दिया रहेगा तो तुम स्लैक मेथड से करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सबसे इजी मेथड कौन सा है बोलो तो लॉन्गेस्ट पाथ निकालो, जितना भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ स्लैक मेथड से देखो और भी पाथ है, तो ये वाला भी तो पाथ है। ठीक है, तो तुमको कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। अगर स्लैक मेथड से करते तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई कि अच्छा ये ही पाथ है, अब हमको इसमें से ही सिर्फ निकालना है कि कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, अगर स्लैक मेथड नहीं करोगे तो क्या करोगे, तुम हर एक पाथ का ड्यूरेशन कैलकुलेट करते करते जाओगे, अब देखोगे कि इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, दैट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। अगर ऐसा नेटवर्क डायग्राम रहा तो जिसमें बहुत सारा पाथ रहेगा, मतलब 1 से लेकर 9 तक पहुंचने के लिए बहुत सारा पाथ है। अपार्ट फ्रॉम दिस पाथ देयर आर अदर पाथ्स आल्सो, राइट, जैसे 8 टू से 1 टू 3, 3 टू 5, 5 टू 8, 9, राइट। तो वैसे बहुत सारा पाथ होगा, तुम सब पाथ का ड्यूरेशन निकालोगे तब भी टाइम कंजम्पशन, टाइम वो रहेगा तुम्हारा, ज़्यादा लगेगा। तो स्लैक मेथड से क्या होता है कि यस यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन सा क्रिटिकल पाथ हो सकता है, अब उसमें से तुम जो लॉन्गेस्ट होगा वी विल कंसिडर इट एज द क्रिटिकल पाथ। क्लियर? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম পাথ 5 টা Yes, sir. 1 to 4 আছে, ওটা 1 to 2 লেখা। पार्ट 5 टा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये 1 to 4 होगा, 4 to 6, 6 to, वेरी गुड, हाँ ये 4 होगा, ये दोनों एक ही होगा है ना, हाँ दिस विल बी 4। ओके, सो दिस इज द, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों स्लैक निकालना, क्योंकि देखो ये पाथ को छोड़कर भी और भी पाथ मिलेगा तुमको अगर स्लैक मेथड से नहीं करोगे। अब उसमें से तुमको देखना है कौन सा मतलब ज्यादा दिन वाला होगा। ठीक है, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। स्लैक से क्या होता है कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमको कौन कौन सा पाथ कंसिडर करना चाहिए, और उसमें से अब देखेंगे कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है। हाँ ठीक है, और ये और एक टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए हमको एक एप्रोप्रिएट मेथड में जाना जरूरी है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, दैट इज कॉल्ड द फ्लोट मेथड। तो उसका भी कुछ बेसिक्स होगा, वी विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, बट बेस्ड ऑन दिस मेथड लेट अस सॉल्व अनदर सिंपल एग्जांपल। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल है। नाउ तुमको मैंने डायग्राम दे दिया है, ड्राइंग करने का जरूरत नहीं है, तुम खुद ये डायग्राम दे दिया है। ओके, अब यहाँ से पूछेगा कि फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तुमको अर्ली स्टार्ट टाइम भी नहीं बोलेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालो। ठीक है, और क्या निकालो कि विच इज द क्रिटिकल पाथ, ये निकालो। ठीक है, और बोलेगा स्लैक मेथड से करो। ठीक है, सो हाउ यू विल सॉल्व दिस, whenever they will ask you to calculate the project duration, that means हमको क्या कैलकुलेट करना चाहिए बोलो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहाँ पे आता है पहले बोलो। Lasted first. यस, ये जो इवेंट होता है हेड इवेंट, इसका जो ईएस है दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सिर्फ बोला, तुमको ईएस भी नहीं बोला, एलएफ भी नहीं बोला, सो यू नीड टू कैलकुलेट ईएस फर्स्ट। ओके, तो बोलो तो कैसे करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग ईएस 14 হবে ম্যাম। 13 হবে, 14। 14, वेरी गुड, लेकिन कैसे आया। अच्छा, यू प्लीज सॉल्व दिस इन अ पेपर एंड ट्राई टू सबमिट इट इन द गूगल क्लासरूम। ओके, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ स्लॉट। तो फर्स्ट कैलकुलेट ईएस ऑफ दिस, ईएस वन क्या होगा बोलो। 0। वेरी गुड, ईएस वन इज 0। ओके, नाउ कौन सा निकलेगा बोलो। ES2 3 হবে। ES2 ES2 will be इसके पीछे वाला ES प्लस ड्यूरेशन, तो 0 प्लस 3। ओके, कितना सारा पहले देखो हेड, इसका एरो हेड कितना है, एक ही एरो हेड आ रहा है, मतलब एक ही ES का वैल्यू होगा। ठीक है, देखो किसी ने बोला था ES3 निकाले पहले, लेकिन ES3 के लिए क्या चाहिए, देखो ES3 के लिए ये वाला एक्टिविटी देखना है और ये वाला एक्टिविटी देखना है, दो ठो एरो हेड है तो
तो ये वाला एक्टिविटी के लिए हमको इसका ES जानना जरूरी है. सो बिफोर कैलकुलेटिंग ES3 वी मस्ट कैलकुलेट ES2. ठीक है, तो ES3 हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे पहले, सबसे पहले ES2 करना है, ऐसे भी देखना है. ओके, अब टेल मी व्हाट, यहाँ पे दो वैल्यू है तो अब आएगा मैक्सिमम, इसमें आ जाएगा ES3 विल बी मैक्सिमम अमंग द टू वैल्यूज. ओके, तो मैक्सिमम क्या क्या आएगा बोलो वैल्यूज ES3 का. 3 and 5. यस, सो 0 प्लस 5, ये है 5, ठीक है, और ये है 3 प्लस 0 इज 3. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, ये कौन सा एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का नाम क्या है, ये डैश डैश में दिया है, उसका 0 ड्यूरेशन है. इस वाले एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, देखो बाकी का तो सॉलिड एरो है लेकिन ये डैश डैश करके दिया है. सो ये क्या है, इसका एक नाम था, एक्टिविटी का नाम था द एक्टिविटी Dummy विच, यस, इट्स एन इमेजिनरी एक्टिविटी या आर्टिफिशियल एक्टिविटी, मतलब डमी है. ठीक है, जिसमें कोई वी नो एक्टिविटी में ड्यूरेशन लगता है, रिसोर्सेस लगता है, मैन पावर लगता है. ठीक है, बट ये एक्टिविटी में ना तो रिसोर्स लग रहा है ना तो ड्यूरेशन टाइम लग रहा है. इट डज नॉट कंज्यूम रिसोर्सेस, टाइम, ड्यूरेशन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेस. सो इट्स एन इमेजिनरी, ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला दिया जाता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी. ओके, सो मैक्सिमम कौन सा है 5, सो योर ES3 विल बी 5. अब बोलो, अब तो कौन सा जाएंगे हम, अब सिर्फ 5 में जाएंगे ना 4 में जाएंगे. 4. यस, 5 में जाने के लिए हमको 4 से होकर जाना पड़ता है. ओके, तो इसलिए पहले 4 का निकालेंगे. 4 में बोलो कितना सारा ES का वैल्यू आएगा. नाउ टेल मी हाउ मेनी एरो हेड्स आके अटैच हो रहा है उसके साथ. 2, राइट, ये और ये, तो ये इसका भी 2 वैल्यू आएगा. तो जहाँ पे 2 वैल्यू आता है तो हमको मैक्सिमम कंसीडर करना है. सो व्हाट इज द वैल्यू बोलो. 10 and 7. এখন কে আসছে, मैम 10, 7 और 8. কে ঢুকলো এখন, एक है तुम्हारा चलो 2, ये D से जब आता है तो क्या होता है, ES2 है 3, 3 + 4 7. ओके, तो एक है 7, और दूसरा है देखो 5, मतलब 3 से होकर 4 में जा रहा है ये एरो. ठीक है, ये एक्टिविटी. सो ES3 प्लस ड्यूरेशन. ठीक है, सो 5 + 5 10, तो मैक्सिमम इज 10. ओके, सो योर ES4 विल बी 10. अब ES3 निकालो, सॉरी ES5 निकालो. ES5 में कितना सारा एरो है, एरो हेड है 3. 3. ठीक है, सो 3 ठो आएगा, तो उसमें से मैक्सिमम कंसीडर करना है. तो कितना कितना आएगा बोलो हमको. F वाला एक्टिविटी कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा, 3, 2 से 5 में जा रहा है. हाँ, तो 3 ES2 प्लस ड्यूरेशन, सो 7. वेरी गुड. ये 4 से जब आओगे तो कितना होगा, ES4 है 10, 14, मतलब ES4 है 10 प्लस ये वाला एक्टिविटी है तो इसका ड्यूरेशन 4, सो 14. अब यहाँ से जब आओगे तो कितना होगा, 11. हाँ, सो 5, इसका ES3 है 5 प्लस ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन 6, सो 11. सो मैक्सिमम कितना है 14 है. वेरी गुड, 14 ही आ रहा है. ठीक है, 14 आ गया है. अब हमको PD निकल आएगा. सो PD इज 14 डेज, लास्ट वाला जो भी ईयर्स है दैट इज द PD प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो ये कंप्लीट. अब बोलेगा तुमको क्रिटिकल एक्टिविटी निकालो. ठीक है, अब हम यहाँ पे बोले नहीं है कुछ भी, तो चलो स्लैक मेथड से करते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी. तो स्लैक मेथड के लिए क्या चाहिए हमको, LFB चाहिए रहेगा, क्योंकि स्लैक इज इक्वल टू LF माइनस ES. तो हर एक एक्टिविटी का ES तो निकल आया, अब हमको LF निकालना है. तो LF के लिए बैकवर्ड से होके जाना है. ES जैसे फर्स्ट इवेंट का कंसिडर किए थे, अब LF लास्ट इवेंट का कंसिडर करेंगे. तो LF5 विल बी नथिंग बट द project duration, and the project duration is nothing but the ES5, right?
तो यहाँ पे LF5 will be ES5 which is 14. ओके, तो LF5 आ गया 14, तो LF5 is 14. ठीक है, अब बैकवर्ड में जाना है, तो बैकवर्ड में जब जाएंगे तो टेल हेड देखेंगे। ठीक है, टेल ऑफ द एरो हम देखेंगे कि कितना टेल निकला है किसी इवेंट से। ओके, चलो LF5 को निकल आया, तो हम कौन सा पहले करेंगे बोलो, 2, 3 या 4? 2, 3 और 4? यस 4, क्योंकि देखो 2 के लिए हमको 4 से होके बैक में जाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे 3 के लिए भी हमको 4 से होके बैक में जाना पड़ रहा है, तो पहले LF4 निकालना इम्पोर्टेंट है। तो LF4 निकालते हैं तो कितना होगा, LF4 इज द बैकवर्ड कैलकुलेशन, राइट। तो LF4 में माइनस होता है, LF में क्या करना है, ड्यूरेशन को माइनस करना होता है। अब यहाँ पे देखो इस 4 वाले इवेंट में कितना सारा टेल है, ये इसमें एरो देखते थे, अब इसमें टेल देखेंगे तो कितना टेल है, 1 टेल। सो LF का भी एक ही वैल्यू आएगा। सो क्या है, इसका 10. सामने वाला LF माइनस इसका ड्यूरेशन, सो 14 माइनस 4 10। वेरी गुड, तो ये है तुम्हारा 10। ठीक है, LF4 इज 10। अब बोलो 3 जाओगे ना 2 जाओगे, 3 में जाना सही रहेगा ना 2 में? 3 यस 3। क्यों, अगर 2 कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना सारा टेल इसके साथ अटैच है, ये वाला आ रहा है 5 से, तो LF5 हमको पता है, ये वाला एरो आ रहा है 4 से, ये वाला भी हमको पता है, और ये वाला जो है ये वाला आ रहा है कहाँ से, 3 से। तो LF3 तो नहीं निकाले, तो वी कैनॉट कैलकुलेट LF2, तो पहले LF3 में जाते हैं, क्योंकि LF3 में सिर्फ 2 ठो है, और वो कहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है 5 से, एक आ रहा है 4 से, तो दोनों का वैल्यू हमको पता है, तो LF3। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, 2 टेल हेड अटैच है, मतलब 2 वैल्यू, तो मिनिमम। ओके, वी हैव टू टेक द मिनिमम, तो मिनिमम निकालो कितना कितना आएगा। जब 5 से जाएंगे तो LF3 कितना आ रहा है, LF5 माइनस ड्यूरेशन, तो 14 माइनस 6 इज 8। ओके, अब जब हम LF3 जा रहे हैं कहाँ, 4 से, यस, LF4 से, यहाँ से 4 से होके जा रहे हैं बैक में। ठीक है, सो LF4 माइनस ड्यूरेशन, 10 माइनस 5 5, वी हैव टू टेक द मिनिमम, मतलब LF3 इज 5। ओके, अब 2 का निकाल के हमको बोलो तो LF2, यहाँ पे तो बोले थे 3 ठो टेल अटैच है, सो 3 ठो LF3 होगा, LF2 का 3 ठो वैल्यू होगा, उसमें से मिनिमम कंसीडर करना है। ओके, तीनों में से, सो मिनिमम कितना कितना आएगा बोलो तो, नहीं लिख पा रहे हम, बोलो। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम 5, व्हाट इज द LF वैल्यू, 5 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ 14 LF5 माइनस 4 ड्यूरेशन, सो 10। वेरी गुड, अब जाएंगे 4 से, तो LF4 माइनस ड्यूरेशन कितना आएगा, 10 माइनस 4 6। वेरी गुड, अब जाएंगे 3 से, देखो ये 3 से हो जा रहा है पीछे की तरफ, सो LF3 माइनस ड्यूरेशन 0, डमी का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है 0, सो 5 माइनस 0 इज 5, सो इसमें से मिनिमम कौन सा है, 5 है, तो LF2 इज 5। क्लियर, अब चलते हैं LF1 लास्ट वाला, इसमें भी 2 एरो का टेल है, तो 2 LF का वैल्यू आएगा, LF1 so is minimum of 2 values. What are those 2 values? बोलो। When we are using this arrow, a arrow कहाँ से आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, so LF2 minus duration which is LF2 है 5, 5 minus 3 2, और ये वाला देखो कौन सा आ रहा है, LF ये 3 से आ रहा है, ये वाला B एरो 3 से पीछे की तरफ आ रहा है 1 की तरफ, सो LF3 0 माइनस 5 0। ओके,
सो यहाँ पे मिनिमम इज 0। ठीक है, तो सबका एल एफ कैलकुलेट हो गया, सबका ई एफ ई एस कैलकुलेट हो गया है। चलो इसको लिखते हैं अच्छी तरह से। और ठीक है, एल एफ एल एफ एल एफ एल एफ, चलो ठीक है। अब एस कैलकुलेट करते हैं, तो इस वाले का क्या होगा 0। यहाँ पे एस का वैल्यू है S1 इज 0, ठीक है, दिस माइनस दिस करेंगे। ठीक है, S2 इज 2, मतलब नॉन जीरो है, मतलब 5 माइनस 3। ठीक है, S3 इज 0, एल एफ माइनस ई एस से तुम्हारा 0। ठीक है, फिर ये है, ये भी 0 है, S4 भी 0 है, मतलब यहाँ पे लिखते चलो S4 इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये तो 0 है, 10 माइनस 10। ठीक है, अब बचा 5 विच इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन सा तुम्हारा एक्टिविटी 0 रहेगा। ठीक है, तो ये 0, यहाँ पे 0 आया, सॉरी यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया। अब देखो इसमें कौन कौन सा एक्टिविटी आ रहा है, S0 S0, सो दिस इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। यहाँ पे S0, दिस इज S का वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी है कि नहीं है? इज दिस अ क्रिटिकल एक्टिविटी ए? No, ma'am. ये नहीं है। ठीक है, बी क्रिटिकल एक्टिविटी है? Yes, ma'am. यस, तो दिस इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, चलो हम लाल से कर देते हैं मार्क, तो क्रिटिकल एक्टिविटी। अब ये देखो डी एक्टिविटी क्रिटिकल है, डी का देखो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है तो इसका 2 है, यहाँ पे फिनिशिंग No, हो रहा है ma'am. इसका 0 है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाला एक्टिविटी देखो, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अब सी एक्टिविटी है, वाई? बिकॉज इट इज यहाँ से 0, यहाँ से 0 है, तो दिस इज ऑल्सो 0, दिस ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब ये वाला क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। ओके, ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, एफ भी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसका ये 0 नहीं है, इसका सिर्फ ये वाला 0 है। ई एक्टिविटी 0 है, सॉरी क्रिटिकल है, बिकॉज यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है, स्टार्टिंग में भी 0, फिनिशिंग में भी 0। ओके, और एक एक्टिविटी बचा कौन सा, जी, देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटी। अब इसमें से बोलो कितना क्रिटिकल पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी क्रिटिकल पार्ट्स यू कैन आइडेंटिफाई? 2 2, राइट। अब इसमें से हमको देखना है ड्यूरेशन मैक्सिमम कौन सा होगा। ओके, सो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना है बोलो, ये पाथ का ड्यूरेशन क्या है? 14 14। ठीक है, और दूसरा है ये वाला, तो इसमें से 11 11। ठीक है, अब देखो स्लैक मेथड से 2 पाथ मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमको ऐसा मेथड चाहिए कि जिसमें एक ही बार में एक ही क्रिटिकल पाथ निकल आए। ठीक है, तो इसमें से लेकिन 2 आ रहा है, सो दोनों में से जो मैक्सिमम है, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, सो वी कैन कंसीडर दिस एज अ क्रिटिकल पाथ। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। एंड एवरीवन प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट। ओके, देखो यहाँ पे जी, ओके, यू कैन सबमिट योर क्लास वर्क हियर। और एक इम्पोर्टेंट, थोड़ा म्यूट करोगे, एंड प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सजेशंस देना चाहेंगे फॉर द योर अपकमिंग इंटरनल असेसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, मतलब एमसीक्यू बेसिस में,
तो तुम लोग उसको जमा भी कर सकते हो। हम लोग चाहेंगे मैक्सिमम हो क्लास में सब खत्म कर देंगे। अगर नहीं हो पाता तो यू हैव टू सबमिट दैट एज एन असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, एंड प्लीज ट्राई टू बी जॉइन दैट क्लास। ओके, क्योंकि Okay, वहाँ ma'am. पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग विच यू कैन कंसिडर इट एज द सजेशंस आल्सो। एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. ओके No, ma'am. ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, और ये वाला सबमिट कर देना, एटलीस्ट जितना जन प्रेजेंट हो उतना जन तो सबमिट कर देना चाहिए। ओके।